थोड़ा सा मैं अपने बारे में बात करना चाहूँगा। Very small theater, there are very distinct cricketers sitting right beside. Being the senior most cricketer, it's my privilege to be talking to the journalist fraternity. My association with cricket has been, particularly GTCA, has been more than 50 years. I have remained associated with this association for around 50 years. I am reminded of the great things that have happened at JTC. I am reminded of first one-day international match that was played between West Indies and India. What you see now, you see our teams doing well. It has a history. It has a history that we have been trying our level best to compete with the better teams. And जो आज हमारी टीम ने परफॉर्मेंस दी है, इससे पहले भी हमारी टीमों ने परफॉर्मेंस दी थी. We would have been happier. We would have been happier had our team qualified for the semi-finals, and they would have been able to create a history. But as you know, cricket is a game of glorious uncertainties. It will continue to remain so. It's nothing new that teams can falter. I remember last year, Indian team was bundled out by New Zealand at their home. And moreover by the spinners of New Zealand. New Zealand outclassed them, but that does not mean that India did not play well. JNK की अपनी history है. We have been participating in Ranji Trophy tournaments for around 50 years, a little more than that. It would have been very, very ideal. I had in fact discussed this with Roof Saab. I was thinking that it would be my honor to share the dice with Roof Saab. Because he is the first person to have played for J&K in 1959. That is around 65 years back. Roof Saab was the first person who represented J&K in Ranji Trophy. We were expecting, but unfortunately he was not well. Now we have with us Parvez Saab हैं, Ashraf Saab हैं, Imtiaz Saab, Javed Saab, Zohar Saab, हमारे top class cricketers, Samula, Iqbal Saab, all others. I will not be able to name them. Now, we are here to share our feelings with you. It's a very, very great occasion for us that our team, not only Ranji Trophy team. In fact, I remember we had to wait for around 20 to 30 years for somebody to score a century in Ranji Trophy. It was Farooq Mirza who was the first person. After having played Ranji Trophy for so many years, we recorded the first century way back some years, but 79. Thereafter, we see that every year, even this year, our youngsters manage to score double centuries. You know, junior groups. आपने देखा होगा कि हमारे जो लड़के हैं, इन्होंने ये ऐसे फ्लूक से नहीं हो गया कि हमने क्वालिफाई किया दिस क्वार्टर फाइनल. आप देख लीजिए हमारे लड़कों की परफॉर्मेंस क्या. It has been a consistent performance. और सबसे बड़ी बात है, जब भी कभी जो JNK की टीम जीतती थी, it would be taken as a surprise. It would be taken as a surprise. But that stage is over. That stage is over because our teams have started performing consistently. It does not mean that we have to be complacent. We have got to improve our game. We have got to improve our facilities. I am sure this is an occasion for me to talk. Okay, this is a place we owe everything to this place. I would be happier if this place and also a stadium at Jammu comes up with all good facilities. But I think 30-40 years back, this ground was better than what it is now. But I am sure things will move. हम अपने घर को अगर ठीक कर सकते हैं, तो naturally हमारी टीम भी आगे चलेगी. With all these words, I introduce on my right is Parvez Saab. अगर आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज. मंजूर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका. कहने को तो बहुत कुछ है, मगर मंजूर साहब ने बाकी कम ही रखा बोलने में. तो सबसे बड़ी खुशी ये है कि आज अखबार वालों ने इंटरेस्ट दिखाया वो यहाँ आए हैं. एक ज़माना ये भी था कि जब तक उनको कबाब न दें वो नहीं आते. तो अब ज़माना बदल गया है. अब जैसे हम गेम में इंटरेस्टेड हैं बाहर बैठे भी, और आप लोग भी गेम में इंटरेस्टेड हैं,
जहाँ तक हमारी रणजी का सवाल है इस साल का या बाकी हिस्ट्री का जो कहेंगे 59 से चलती आई है, एक तवील सफर है जो इस टीम ने किया है। इस टीम ने मालगाड़ी में भी सफर किया है। इस टीम ने उस बाल्टी में भी पानी पिया है जिसे पिच पे पानी डालते थे। इस टीम ने तवी को भी बाथरूम बनाया है जम्मू में। और आज ये टीम अगर 5 स्टार होटल में रहती है, अच्छा ट्रैवल करती है और अच्छी परफॉर्मेंस देती है, तो हम सब बहुत खुश हैं। खुशी ज़्यादा ये होती कि जो मैंने पहले भी एक दफ़ा किसी डीडी पे कहा था कि मेरा अपना ख्याल था कि इस साल जे.एंड.के रणजी जीतेगा। मैं पूरा श्योर था कि जे.एंड.के रणजी जीतेगा इस साल, मगर बदकिस्मती गेम ऐसी है, इसमें पता नहीं चलता है कब क्या हो जाए, तो हम नहीं रणजी नहीं जीत सकते। मगर 2 चीज़ें मुझे इस टीम की और इस मैनेजमेंट की या सपोर्ट स्टाफ की बहुत अच्छी लगी इस साल। सबसे अच्छी बात यह थी कि हमारी टीम ने जीत में भी डिग्निटी दिखाई और हार में भी ग्रेस दिखाई। जब जीते, जब हमारे उमर नसीर ने रोहित शर्मा का विकेट लिया, उसने हवा में मुक्के नहीं चलाए, नाचा नहीं, गालियां नहीं दी, जमीन को मुक्के नहीं मारे, बड़ी डिग्निटी से उसने एक बड़े प्लेयर को आउट किया, बड़ी डिग्निटी से उसने बिहेव किया। जब हमने मैच जीता बॉम्बे के साथ, हमारी टीम ने भांगड़ा नहीं किया, हवा में जंपे नहीं मारी, बड़ी डिग्निटी से उन्होंने जीता, बड़ी डिग्निटी से वो ग्राउंड से बाहर निकले। खुशी उनके मुंह पे नजर आती थी, मगर जो ग्रेस और डिग्निटी उन्होंने दिखाई बहुत अच्छी। उसके बाद अब जब केरला के साथ एक हार्ट ब्रेक हुआ, बहुत तकलीफ हुई सब प्लेयरों को, हम देखने वालों को हुई, जो वहाँ खेल रहे थे तो उनका क्या हाल होगा। उसके बाद भी उन्होंने अपनी डिग्निटी और ग्रेस मेंटेन की। ये दिखाती है कि जो हमारी टीम है, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, उनका माइंडसेट कितना अच्छा है। वो गेम को किस तरीके से ले रहे हैं, वो गेम को किस तरीके से खेलना चाहते हैं। साथ में जो सपोर्ट स्टाफ हमारा इसके साथ होता है, टीम के साथ होता है, या आज अगर 14 प्लेयर खेलते हैं तो 20 बाहर होते हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट स्टाफ का भी अच्छा रोल रहा होगा, तभी टीम ने इतना अच्छा खेला। जो मैनेजमेंट थी, जैसे बॉम्बे के मैच से मैंने सुना कि टीम 10 दिन पहले बॉम्बे पहुंची थी, इसलिए पहुंची थी कि वहाँ के वेदर से, वहाँ जो ह्यूमिडिटी है उसमें बैठ के थोड़ा अपने आप को एडजस्ट कर लेगी, फिर मैच खेलने उतरेगी। ये सारी चीज़ें देखिए, मैच का रिजल्ट जो होता है वो तो किसी के हक में जाएगा, मगर देखना आपने ये है कि जो खेलने की जर्नी है कि हमारी टीम ने जो सफ़र किया वो कैसे किया। हमारी टीम ने बड़ी डिग्निटी से सफ़र किया, मैं उनको उसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। आपने हार में भी अपनी ग्रेस और डिग्निटी नहीं खोई, आपने जीत के भी अपनी डिग्निटी नहीं खोई, आपने जीत के भी वो भांगड़े नहीं किए। इस चीज़ में मुबारक अपनी टीम को देता हूँ। दूसरा ये मैं कहता हूँ कि जो हमारी मैनेजमेंट ने एक अच्छे तरीके से टीम को हैंडल किया। शिकायतें सबको होती हैं, यहाँ भी बहुत सारों की शिकायतें होंगी, मैनेजमेंट से, टीम से, सिलेक्शन से, बाकी सारी चीज़ें। ये कहानी होती, अल्टीमेटली 11 प्लेयरों ने खेलना है। आपके पास तो ऐसा तो नहीं कि आपके पास सिर्फ 11 ही प्लेयर होंगे, खेलने वाले 33 प्लेयर होंगे जो 11 में खेल सकते हैं, मगर आपको टीम खिलानी, आपको इंडिविजुअल्स नहीं खिलाने। बड़े बड़े नेशन जिनके पास टैलेंट बहुत अच्छा है, एज ए टीम क्लिक क्यों नहीं करते? क्योंकि वो टीम नहीं खिलाते, वो इंडिविजुअल्स खिलाते हैं। जैसे इनने हमारे टॉप प्लेयर जैसे समद को मैच में नहीं खिलाया, टीम को नहीं लगा होगा खेलेगा, उसकी पोजीशन है, उन्हें नहीं खिलाया उसको। ये बोल्ड डिसीजंस लिए। ये सारी चीज़ें देखते हुए मुझे लगता है कि हमारी टीम ने और हमारी मैनेजमेंट और हमारी थिंकिंग ने एक वो कॉर्नर टर्न किया है। हम उस कॉर्नर के आगे निकल गए जिसके आगे हमको नजर नहीं आता था। अब हमको नजर आ रहा है कि आगे हमारा रास्ता क्या है। अब हमको ये दिख रहा है कि जो 1982-83 में 24 साल के बाद जे.एंड.के ने पहला मैच जीता, वो सफर वहां से शुरू होके आज कहाँ तक पहुंच गए। बॉम्बे से 2 मैच खेले, दोनों मैच बॉम्बे को हराए, और वो भी उनके अपने घर में जाकर। एक बार हराने वाले में तो शमीउल्लाह भी शायद थे, माजिद भी थे, शमीउल्लाह भी, माजिद भी थे। तो ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए मैं यहाँ जो हमारी लोकल मैनेजमेंट है JKC की, उनका भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उनने जो मौका दिया हमको आपसे बात करने का, अपने ख्यालात जाहिर करने का। जो हम वैसे सोशल मीडिया पे तो अपनी स्टीम निकालते ही रहते, मगर आपके सामने बात करने का मौका मिला, इसके लिए मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ। मेरे साथ यहाँ अशरफ साहब हैं जो हमारे सीनियर हैं, जिनके साथ मैंने यूनिवर्सिटी से खेलना स्टार्ट किया था। ये मेरे पहले कैप्टन थे यूनिवर्सिटी में भी। अब ये अगर कुछ कहना चाहते हैं
अच्छा ये कहते मैं कुछ नहीं कहूँगा तो मानिए सवाल सर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस आने का क्या मकसद था वो तो बताइए। जी जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मकसद था, आप कन्वे क्या कर रहे थे? प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मतलब ये था, इनफैक्ट वी had received invitation from our association that our team has performed so well, and all the senior cricketers who have been associated with J&K, they should come and celebrate the day. That is the main objective of, and providing a chance to the journalists so that they can interact with us and get a feedback. That is the main objective of the press conference. सर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही हमारी टीम की इस बार। एक लीड जो रह गई है सिर्फ आपसी बदकिस्मती की इसे ताबीर कर सकते हैं हम। क्या समझते हैं अगर उमरान मलिक और रासिक होते तो शायद ये लीड भी हमारे हक में जाती। देखिए, मैंने पहले ही अपने स्टेटमेंट में कहा कि if these things have always happened and will continue to happen. If you remember, there are teams who scored. I remember a test match where teams scored 580 in the first inning, and then towards the end they had to score 100 in the last inning to win the match. They lost the test match. Where we feel really sorry that such a thing happened, but this will continue to happen. If you remember, there's a last inning wicket. I remember there was a match between Pakistan and New Zealand, where last wicket Bob Cunis and Brian Hastings, they scored something around 160 runs for the last. I'm not very sure about the number, but this happened and they lost the match. So we should maybe there have been lapses here and there. We could improve in catching and fielding. That's how we expect things to go. In सर आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई तो खुशी का मौका है जी। तो ये बताइए कि कौन सी चेंजेस हुई, जैसा कि आप कहते हैं कि एक ख्वाब सा बना हुआ था किसी टीम के साथ जीतना, किन चेंजेस पर अपनी ये फतह आप हासिल हुई, चेंजेस क्या हुई? मैं अपनी बात करता हूँ, मैं अपनी बात how I look at cricket on the basis of my association with cricket. There was a time when we had to motivate people to play cricket. The basic difference is people have started taking it as a profession. You find parents coming with kids to the stadium and spending almost 5 to 6 hours with them every day. I remember we used to skip our schools and see that make sure that our parents don't see us going to cricket field. That's the main difference. Now and then. This is Sarosh from Network 18. My question is that, not that I'm being cynical about it, because I'm a cricket aficionado, so I want to understand. Association has been plagued with so many controversies. We are unable to generate world-class cricket players across Jammu and Kashmir, barring a few, जिसमें हम लोग we are riding on. Recently, Akib is there and Rasik and all. But then why aren't they sustaining in international cricket matches? Like we see people predominantly from Maharashtra, Punjab, and Delhi clubs. So why aren't we able to produce such? I'm so happy you have a question that touched my heart. And I am reminded of a match that जब मैंने पहले बात की वेस्ट इंडीज और इंडिया के मैच की. I had the privilege of being, आप मेरे को पता नहीं आप समझते होंगे ये कोई छोटा आदमी है एज के हिसाब से. I'm 74 years old. शुक्र अल्लाह. I was in charge of the ground with Fajr Sahab as my convener and Mr. Kuyum as the grounds committee member there. We prepared this weekend for West Indies and India match. मैं बिल्कुल वसूल के साथ गया. ये तब जाके जब ये स्टेडियम 10-20 हमारे जो यहाँ ऑफिस बेयरर्स थे, they were very influential people in the sense they were close to the higher ups in the association. They would get most of the things done on their professional lives, not because there was no money ever. And with very meager resources, we managed to conduct 3 one-day matches. I think this is the tragedy that this place, which is a priceless piece of land for all of us, and I must salute all those people who have created this infrastructure for us. I tell you, the biggest contribution of our seniors is that they may not have paid us a lot of money by way of match money, but ये सबसे बड़ा हमारे लिए गिफ्ट ये है, और सबसे बड़ी खिदमत होगी एसोसिएशन की. इस एसोसिएशन की सबसे बड़ी खिदमत होगी अगर इस स्टेडियम को ये ठीक कर सकते. और साथ ही साथ
हमने जम्मू में भी एक आलिशान स्टेडियम होना चाहिए, नॉट ओनली प्रोविंशियल हेड स्टेडियम्स, हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट में टर्फ विकेट्स होने चाहिए। दैट्स हाउ वी कैन सस्टेन दिस एंड हैव। आप देखिए कि आपके क्वालिटी में कोई परेशानी नहीं है। लुक एट आकिब, उसे परहैप्स 5 wicket falls away, huh? He is knocking at the doors of India, but we need to sustain and enhance his potential by providing facilities, by providing infrastructure and competitive cricket. Not only infrastructure. It's not only infrastructure that has helped people to grow. It is only the competitive cricket and your drive for the association, drive of the association tonight. मुझे लगता है कि इंशाल्लाह अब थोड़ा सा मैं आपकी बात कहूँगा कि हम क्रिकेटर जो यहाँ सारे बैठे हैं, चाहे मेरे से छोटे, बहुत सारे छोटे हैं मगर मुझसे ज़्यादा अच्छे क्रिकेटर रहे। I've had the privilege of playing with परवेज अशरफ साहब, मुझे याद है he was one of the smartest cricketer जो हमारे थे। और परवेज साहब, इनकी तो बात ही नहीं है, मगर अनफॉर्चुनेटली मुझे याद है अशरफ साहब played for Indian schools. Ashraf Saab played for Indian schools. You see Shubham Khajuria. He was the first person to represent India, and we were at the helm of affairs that time. But he kept his game on. Whatever little facilities were given to them, they took maximum advantage of that. मैं कहता हूँ my hats off to these players. With very little cricket that we have been able to give, they have reached this stage. अगर हम थोड़ा सा और एफर्ट्स करेंगे, which I am sure, अगर क्रिकेटर्स मैनेज, मुझे नजर आता है इंशाल्लाह कि हमारी टीमें और आगे जाएंगी। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है कि जिस तरह से यहाँ पर लीगें होती है, जो लोकल लीग से लोग और प्लेयर्स ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, हत्ता कि इसमें रखने चाहिए, तो क्या लैक्स है आप में? और दूसरा सवाल सर आपसे है, परवेज साहब से, कि आपने बोला कि मीडिया आता नहीं है। मैं यहाँ पर बहुत बार आया हूँ सक्सेस स्टोरी कवर करने के लिए। यहाँ पर हर एक कहता है कि वी आर नॉट एलिजिबल टू टॉक, तो क्या रीजन है इन दो पीछे? हम तो हमेशा सक्सेस स्टोरीज कवर तस्लील करना जरूरी था जी। ये मौका एक है, मैं आपके साथ दिल की बात करता हूँ। जी, आई एम अ पर्सन हु रियली इंटरेक्ट्स, ज़्यादातर मैं दिल से ही बात करता हूँ, ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। वो ये है कि जो आपने बात कही कि यहाँ क्रिकेट जो हमारे क्लब्स थे, बट मैं इस वक्त कोई अनप्लेजेंट बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ हो गई, थोड़ा सा क्रिकेट सफर हो गया। मुझे याद है हम सभी इन्वॉल्व थे। देयर यूज्ड टू बी लीग मैचेस, देयर यूज्ड टू बी मेनी मैच, मगर कुछ ऐसे हालात भी हो गए कि हमारा स्टेडियम कोई 7-8 साल बंद ही रहा। मगर दैट डज नॉट मीन कि दैट वी कुड नॉट हैव डन बेटर। There is always a scope for improvement, and in case our association manages to organize tournaments at junior levels, not only tournaments, these coaching camps for smaller kids, जो 10 साल के, 11 साल के, 12 साल, that's where we catch the talent. क्योंकि आपने कहा कि स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, what do you expect from the current government जो भी स्पोर्ट्स को लेकर काफी ज़्यादा सीरियस नजर आ रही है? बिकॉज हमारे पास टैलेंट भी है, कैलिबर भी है और नॉलेज भी है, हर एक चीज हमारे पास है। जो नए प्लेयर्स हैं उनकी बात की, बट व्हाट काइंड ऑफ आपके बात से मेरे जहन में एक चीज बात आ गई कि यहाँ एक परेशानी हो गई है हमारे क्रिकेटर्स में। जो भी कोई हमारे सीनियर क्रिकेटर्स हैं, वंस वी गिव कोई असाइनमेंट देते हैं, अनफॉर्चुनेटली they are not able to take those assignments because they are on government roll. Government में काम करते हैं। I remember there used to be a time who would give special leaves. मैं समझता हूँ कि government should relax some rules and provide जो आपके top class sportsmen हैं, अगर ही कोई assignments लेते हैं, coaching के, umpiring के, we expect that government should come forward and relax some rules so that our brilliant जो हमारे लोग हैं पीछे खड़े हैं, इतने serious cricketers हैं, they can take up assignments and manage things better than ordinary people.